come in, sir? Please have your seat. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Introduce yourself first. So my name is Priyanshu Kumari. I am from Palamu district of Jharkhand. I was born in Aurangabad district of Bihar. I have completed the whole of my education from Palamu district of Jharkhand, and then after I have completed my graduation and masters in mathematics from GLA College, Daltonganj in 2022. And then right now you are preparing for the civil services. sir. So after doing graduation, post-graduation as well, why are you so much inclined towards civil services? So this job provides so diverse options to serve with the people, and uh, so I was planning to go into academics initially, but due to COVID our studies got disturbed, and so then after I got inclined towards the GS, and so when I saw the syllabus I thought that I could do better in this field, and it matches with my interest in, and so it will provide me opportunities to develop. So it will provide me better opportunities for my personal growth as well, and I can serve people better from here as well. And how will your mathematics background help you in this field of administrative jobs? So first of all, when due to mathematics we develop a lot of problem solving aptitude, decision making, and logical reasoning. So it can be used everywhere, and so in administration as well. Logical thinking, problem solving, anything more? So in mathematics we are taught to do the optimum use of the resources. So in optimization technique we are taught that how to use resources in optimally in minimum input. So it can be used everywhere in administration. Okay. And what will be the benefit of your optional subject geography in civil services? So geography is a very diverse subject. So it will. So we have to. So we study economics. Economic geography, political geography. We study about the environmental conditions. So it can be applied in. So it can be used to deal with the environmental problems that we are currently facing, and so it will help us to. So currently I'm able to recollect this much only. What is demographic dividend? So demographic dividend, the population which lies in age group of 15 to 54. So we are having a immense population in this age group. So reaping up the benefits of this section is called demographic dividend. So the age group defined is 15 to 54. You are sure? Yes, sir. I think 15 to 54 it is. Yes, sir. Okay. Now, tell me, what is the difference between a cyclone and a tsunami? So cyclone is a movement of anti-clockwise or clockwise. A movement of air is called cyclone, and so tsunami is related to earthquake that happens in oceans, and so it creates a lot of sorry, sir. Okay. Considering our water boundaries, Yes, sir. that is the water boundaries of India, what is the territorial limit of India? Considering the water boundaries. Yes, sir. Territorial limit is 12 nautical miles. 12 nautical miles. Okay. So this one is the territorial limit, or is there any limit beyond these 12 nautical miles? Yes, so beyond 12 nautical miles there lies exclusive economic zone,
And so currently I'm unable to recall the exact desert that how long it is. Okay. What are these? The EEZ you are talking about? What is the purpose of creating the EEZs? So EEZ are the zones where we can use those water for resource. Sir, sorry, sir, I'm unable to recall, sir. Okay. What positives do you see in Bihar from its geography? That is, from the geographical angle, what are the positives present in Bihar? So, first of all, 96% of the area of Bihar is a plain area, and so it has it has alluvial and a soil. It is good for agriculture purpose, and so it has appropriate drainage conditions. So it has a net of rivers. So, so this is the geographical advantage that I Anything see. more than that can economically benefit Bihar, the geographical resources or the features that can benefit Bihar economically? Yes, so One you said the plain region, the soils, Yes, the sir. Gangetic plain area. Yes, so the southern part of Bihar is so it is a part of Chota Nagpur plateau, and so it contains some minerals. These can be utilized for Which sort of minerals are present there? So there are pyrites, so mica and gold, and so porcelain and Gold is there, sure you are. huh? Gold is there. Yes, the gold is there in Jamui district of so Bihar. Okay. Okay. Something more? The geographical angle, the geographical features that can be beneficial for the economy of Bihar. So other that I can recollect is it has a so in southern part of Bihar only there is a lot of waterfalls and forest cover that can be used for tourism purpose when if we can. Can you name some of the waterfalls? Yes, sir. There is Kakolhat waterfall in Nevada. Where it is? It's in Nevada district. Okay. And so there is so there are three more waterfalls in Rohtas district, but currently I'm unable to recall the name. Okay. Tell us something about the recently concluded COP28. So COP28 was held in UAE, and so there are some resolutions that were adopted. What were they? So the most prominent one is every time there was loss and damage fund which used to be it used to be said that it will form, but this time the fund allocation has been finalized for that loss and damage fund. Okay. And Of what magnitude? Fund? What is the so magnitude? sorry sir, I'm unable to recall. Okay. Okay. Next one. Sir, I have this much. I have read this much only. Okay. Sir. Okay, as a student of mathematics, Yes, sir. so first of all, tell me what is the sum of all natural numbers? So sum of all natural numbers is n into n plus 1 by 2. Okay, this is the formula. Yes, sir. Okay, and what is the contribution of Ramanujan Yes, sir. in the field of mathematics? So he had contributed in a lot of fields in mathematics. So currently I'm unable to recall so exactly what. Okay, Yes, yes, sir. and contribution of Vasisht Narayan Singh? So Vasisht Narayan Singh worked on in vector calculus. He had done some research work, and so it was regarding circular vectors. ओके चलो एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है Yes, sir. 11 में 2 ऐड करना है
यस 11 में टू 2 ऐड करना है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। कंडीशन जो भी हो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 11 में 2 ऐड करना है, सो वैल्यू 1 आनी चाहिए। कंडीशन जो भी आप डिसाइड कर सकती हैं वो आपके ऊपर है। सॉरी सर। नहीं? नो सर। अच्छा, मैथमेटिक्स को लेकर के जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे गिर रहा है कि नहीं? यस सर, सर नॉट 100% बट यस डाउनफॉल की तरफ गया यस है। सर, देयर इज डाउनफॉल। अब बच्चे उतना मैथमेटिक्स को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। हाँ सर। तो अगर बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स को लेकर के थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना हो यस सर। तो आप क्या स्टेप्स उठा सकती हैं एक ऑफिसर के रूप में? सो पहले बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसके डाउन होने का कारण ये है कि उन्हें जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाया जाता है स्कूल में, उन्हें वो इजी नहीं लगता, उन्हें वो बोरिंग लगती है। तो इसके लिए हमें जो भी टीचर्स हैं हमारे एकेडमिक्स में, उन्हें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बना करके बच्चों को पढ़ाया जा सके। और सर उनको जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं सर उनसे रिलेट करा करके, और अगर उन्हें उस तरह से पढ़ाया जाए तो वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग भी तरीके से भी लेंगे और वो अच्छे से वो अपने इंटरेस्ट को भी दिखाएंगे। कुछ आप तरीका बता सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैथमेटिक्स को? सॉरी सर। आपने फेस नहीं किया प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में? सर मुझे शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी तो कैसे मैथमेटिक्स में। आपने फिर ग्रेजुएशन किया और फिर पीजी किया आपने? सर मेरा जो वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा करता था स्कूल में वो मैथमेटिक्स ही था। तो सर मुझ में हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी कि इस सब्जेक्ट को बेहतर कैसे किया जाए। तो सर मैंने कैसे किया फिर? आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सर मुझे जितने भी शिक्षक मिले थे सर उनसे जब भी पढ़ा था तो मुझे बहुत टफ लगता था सब्जेक्ट। सर एक टीचर जो थे हमारे क्लास 8th में वो हमें मिले थे। सर उन्होंने जब मैथ्स पढ़ाया तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने पढ़ाया, उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी आया मैथ्स में। और सर उसके बाद हमने भी अपना एफ़र्ट लगाना शुरू किया। तो सर उसके बाद से सर मैथ्स जो है वो इम्प्रूव हो गई हमारी। अच्छा, एवरी डेटा इज डिजिट यस सर। बट एवरी डिजिट इज नॉट अ डेटा। व्हाट इज योर टेक? एवरी डेटा इज digit यस सर। but every digit is not a data. What is your take? Could you explain it? So every data is digit. Sorry sir. Okay, suppose that you are a woman और आपने भरा है, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस डिप्टी एसपी है। यस सर। और आप कहीं अपना कार ड्राइव करके जा रहे हो और ऑफिसर हो, आप डिप्टी एसपी हो। यस सर। और आपने देखा सडनली कि रास्ते में कुछ लोग जो है रोड ब्लॉक किए हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर दो समुदायों के लोग एकदम आमने सामने हैं, यस सर। ठीक है, और उनको अगर तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत बड़ा राइट्स हो सकता है। यस सर। आप क्या एक्शन लेंगे? आपका मोबाइल बंद है और आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, आप अकेले हैं। सर मैं उस सिचुएशन को, सर चूँकि वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, तो सर मेरे लिए ये फिजिबल नहीं होगा कि मैं अकेले जा कर के उनको संभाल सकूं। सर मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, पर मैं जो अपनी टीम है, टीम को है नहीं ना, अभी तो आप अकेले से जा रहे थे शायद। सर मैं किसी का फ़ोन बोरो करके उसको कॉल कर, सर अपनी टीम को कॉल करके बुला सकती हूँ, और सर उसके बाद मैं इमीडिएटली तब तक आप, जब तक आपकी टीम नहीं आएगी तब तक आप उस जो भी टेंस माहौल है उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, उसको हैंडल करने की कोशिश नहीं करिएगा। हो सकता है जब तक आपकी टीम आए तब तक मामला बहुत ख़राब हो जाए, लोगों की जान माल की क्षति हो जाए। सर जब तक मेरी टीम नहीं आती तब तक मैं वहाँ लोगों को जाके और सर समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। सर उनमें जो एल्डर मेंबर्स होंगे सर, अगर उनसे बात की जाए तो सर हो सकता है कुछ सॉल्यूशंस निकल जाए। मतलब कुछ सजेशन निकल जाए, नहीं निकला तो? सर तब तक हमारी टीम तो आ जाएगी सर।
और मान लीजिए नहीं आई, लेट हो गया, आ रही थी कहीं, उसकी कार पंचर हो गई, तो ऐसा हो जाता है ना, कई बार हमने देखा है। Yes, उसकी sir. स्पीड, जो पुलिस की जो वैन होती है, हमने देखा उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, Yes, sir. टाइम से नहीं पहुंची, 2 घंटे बाद पहुंची, कहीं मैडम वो कार खराब हो गई थी, क्या करिएगा 2 घंटे तक? सर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो अकेले कर सिचुएशन लीजिएगा। सर मैं अपने कमांड में मैं लोगों को लूँगी जो वहाँ पे सर कुछ ऐसे लोग भी होंगे मेरी तरह जो चाहते होंगे कि जो वहाँ की जो राइट्स है वो थम जाए। नहीं, वो दोनों पक्ष के लोग हैं वहाँ, कुछ आपको कोई ऐसा नहीं मिलने वाला है। सर बाकी जो पब्लिक वहाँ से गुजर रही होगी सर उनको मतलब नहीं होता है। आप देखें कि एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसको उठाने तक नहीं जाते हैं कि कौन पुलिस के केस में इन्वॉल्व होगा। देखा आपने कभी ऐसा महसूस किया? कई बार ऐसा होता है। तो सर मेरे पास कार है, मैं खुद ड्राइव करके पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं वहाँ से अपने मतलब टीम हालात को आप छोड़ दिएगा, भाई तुम लोग निपटो, हम थाने से जा रहे हैं, उधर से फोर्स लेकर के आएंगे, वर्दी पहन के आएंगे, रिवॉल्वर लेकर के आएंगे, फिर तुमसे निपटेंगे। तो सर मैं निगोशिएशन करने की कोशिश कर सकती हूँ ऐसे मोमेंट पे। अच्छा, तो सर मैं वही ट्राई करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर। बाइनरी नंबर यस और सर। डेसिमल नंबर में बेसिक क्या डिफरेंस है? सर डेसिमल नंबर में जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 हम नंबर्स लेते हैं और सर बाइनरी नंबर में हम 0 और 1 को नंबर को दोनों में तो 1 0 है ही। सर जो बाइनरी नंबर्स है उसमें जितने भी नंबर्स 0 to 9 के बीच में होते हैं सर उनको हम 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सर। जब हम कन्वर्जन फिर से करते हैं सुनिए, बेसिक डिफरेंस पूछ रहे हैं। सर बाइनरी सर जैसे कि उसका नाम ही बताता है कि सर वो सिर्फ 2 डिजिट हम उसमें ले सकते हैं। तो सर 0 और 1 होगा उसमें और सर 1 to 9 यस सर। नंबर दिया हुआ है, यस सर। इसमें 6 को रिपीट किया गया है, एक बार 2 बार, कुल मिलाकर के 2 बार। तो पूरा 1 to 9 का मीन, मीडियम और मोड बताइए। सर 6 को 2 बार रिपीट किया गया। सर 1 to 9 का मीन, मीडियन और मोड। सॉरी सर। मुझे उसके लिए एंगल और रेडियन में क्या अंतर है? सर जो एंगल है वो हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं और सर 0 to 360 डिग्री में, और सर जो मीडियन है वो हम पाई के फॉर्म में मेज़र करते हैं सर, पाई बाई 160। मेजर से क्या लेना देना है? क्या है एंगल, क्या है और रेडियन क्या है? सॉरी सर। मैप क्या है? सर पार्डन मी सर। मैप ज्योग्राफी है आपका। यस सर। मैप नक्शा। सर मैप जो है वो कोई भी जो प्लेसेस होते हैं सर उनको हम एक अप्रोप्रिएट सा एक स्केल लेकर के जब हम उनको एक पेपर पे सर डिनोट कर पाते हैं तो सर उसको मैप बोलते हैं। स्केल क्या? सेंटीमीटर का स्केल है तो उससे पार दीजिएगा तो मैप हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर से कुछ फिगर आप बना दिए यस सर। तो मैप हो जाएगा वो। सर जो भी एरिया है उसके प्रोपोर्शन में हम सर जो मेजरमेंट है वो उसको क्या प्रोपोर्शन का नाम क्या है? सर सॉरी सर। टोपो मैप, कैडेस्ट्रल मैप, दोनों में क्या अंतर है? सर सॉरी सर। इंटरलैंड क्या है? सॉरी सर। पोर्ट क्या है? हार्बर क्या है? सर पोर्ट्स जो है वो जहाँ पे शिप्स जो हैं वो आती जाती हैं सर उसको पोर्ट्स बोलते हैं सर। हार्बर जो है वहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग होती है शिप्स की सर। वहाँ पे जो शिप्स हैं उनको हम श्योर हैं आप कि सही होता है? सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर। एपोजी क्या है? सर एपोजी जो है वो जब मून जो है वो अर्थ के सर मून जब अर्थ के क्लोजेस्ट होता है तो सर उस पोजीशन को एपोजी बोलते हैं। और दूसरा कोई सिलेशियल बॉडी रहेगा तो नहीं होगा? क्या सर? मून के जगह पर कोई दूसरा सिलेशियल बॉडी रहेगा? हाँ सर, कोई भी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब किसी एक प्लैनेट को हम रेफरेंस की तरह लेंगे और सर जो दूसरा प्लैनेट है जब उसके सबसे क्लोजेस्ट में होगा। एक एलिप्स का कितना फोसाई होता है? क्या सर?
एक इलेक्ट्रिकल का पाथ जो है उसका कितना फुसाई होगा? ऐसे 2. आप DYSP का दिए हैं प्रेफरेंस। यस सर. आप एक ट्रक लोड लीकर का पकड़ लिए हैं। यस सर. इस केस को ट्रायल के लिए कहाँ भेजा जाएगा? सॉरी सर. मजिस्ट्रियल कोर्ट, सेशन कोर्ट, दोनों में क्या अंतर है? सॉरी सर. ये जो ट्रक पकड़े यस सर. इसको कौन कन्फिस्केट करेगा? प्रोविज़न है, बिहार गवर्नमेंट में प्रोविज़न है कि जिस ट्रक माने जो व्हीकल से पकड़ाएगा उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो एक कन्फिस्केशन का ऑर्डर कौन पास करेगा? सॉरी सर. ये जो ट्रक कन्फिस्केट हो जाएगा इसको ऑक्शन कौन करेगा? सॉरी सर. ये जो शराब पकड़ा रहा है उसका फाइनल क्या करता है? सरकार क्या करती है? वो जो शराब पकड़ा गया अब इसका डिस्पोजल कैसे होगा शराब का? सॉरी सर. योगा आपने दिया है यस सर. अपना हॉबी में, योगा किस मेडिसिन सिस्टम के अंदर में आएगा? से योगा जो है वो आयुर्वेद के अंदर में आएगा. आयुर्वेद क्या? आयुर्वेद में योगा हो गया तो सेपरेट है, आयुर्वेद अलग है, सर योगा जो अलग है। आयुष है उसके अंडर में सर योगा भी उसका part फुल है. फॉर्म क्या है? सर आयुष, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी सर. तो एक सिस्टम हुआ, Yes, sir. इसको कौन सा सिस्टम दिया गया है? एक एलोपैथी का सिस्टम है, यस सर. एक ये है, तो इसको किस सिस्टम में रखा गया है? पूरे आयुष को किस सिस्टम में रखा गया है? सर नेचुरोपैथी. ओके। ओके प्रियांशु, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। फर्स्ट टाइम आप अपेयर हो रहे हैं यस सर. बीपीएससी में, ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट है आपका यस सर. और आप इंटरव्यू तक आए हैं, इट्स गुड। तो पहली बात है वो आप में लैक ऑफ एनर्जी दिखी हमें, यस सर. जो एक यंग कैंडिडेट में एनर्जी होनी चाहिए। 2001 आपका डेट ऑफ बर्थ है, सर. तो इस तरह से देखें तो बहुत ही, तो वो जो यूथफुल एनर्जी है वो हमें नहीं दिखी। ठीक है, तो सबसे पहले बात की वो एनर्जी हमें डेवलप करनी है ना। Yes, sir. इंथुजियाज्म एनर्जी जो होनी चाहिए बातचीत करने में, कई बार हमें सुनने में दिक्कत हो रही थी कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना। तो एनर्जी, और उसके साथ रिलेटेड है नर्वसनेस, वो भी आपके चेहरे पे दिख रहा था। ऑल्दो आपने पार्ट्स में अच्छे आंसर्स किए हैं, कुछ पार्ट में जैसे लास्ट में जो सर का पार्ट था वहाँ पे नर्वसनेस ज़्यादा दिख रहा था, है ना। तो पहले तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका ये सिटिंग पोस्चर है ये प्रॉपर नहीं था, है ना। जो हैंड्स का पोजीशन है वो फ्लैट होना चाहिए था ऐसे, और ये पोजीशन जब हम रखते हैं तो वो अपने आप में नर्वसनेस हमारा शो करता है, ये नर्वसनेस का ही पोजीशन होता है। Okay, sir. तो हैंड पोजीशन शुड बी लाइक दैट, और sir. जितना स्पेस आप चेयर का यूज़ कर सकते हो करेंगे, और स्ट्रेट बैठेंगे, ओके है सर. ना। ये पोजीशन आपका अभी ठीक है। नेक्स्ट, जब आपने एंट्री की, सो विश करना. विश नहीं किया आपने, और जब आप बैठ गए Yes, sir. देन यू ग्रीटेड अस, यस सर. है ना। तो ये शायद आपने भी मार्क किया होगा वहाँ पे, ये था। फिर आई कांटेक्ट आपका प्रॉपर नहीं था। स्टार्टिंग में वो ज़्यादा ब्रेक हो रहा था, बाद में थोड़ा सा आपने उसको रिकवर किया, बट वो ब्रेक हो रहा था। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू मेंटेन द आई कांटेक्ट। फिर एक इशू मुझे ये भी लगा हिंदी और इंग्लिश का। जब आप इंग्लिश में आपने स्टार्ट किया, है ना, तो वहाँ से आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही थी, बट फिर जब सर से आपकी हिंदी में बात हो रही थी तो आप कुछ रिलैक्स लग रहे थे वहाँ पे। तो आई थिंक मीडियम हिंदी ऑप्ट कर. हाँ, नहीं आपने दोनों लिख दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है हमें भी, है ना। तो कोई एक ही हमें लिखना चाहिए था। तो हिंदी आपकी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए इनफैक्ट इंग्लिश भी बुरी नहीं है, बट हिंदी में फ्लो आपका ठीक था। सर हिंदी में, इंग्लिश में सर फ्लो बहुत ब्रेक हो रहा है और नर्वसनेस हो रही है सर, बीच में हिंदी आ जा रहा है इंग्लिश बोलने हाँ, में. तो हिंदी को ही हम बेस जो हमारा मीडियम है वो रखेंगे, ठीक है।
ये सब चीज़ें हैं। फिर सर ने कुछ क्वेश्चन आपसे मैथ से रिलेटेड किए थे, रामानुजन का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे आप नहीं बोल पाई, है ना, ये देखना पड़ता है। फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड सर के कुछ क्वेश्चंस थे, मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, वहाँ पे आप बोल नहीं पाई। सिचुएशन को भी आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ा सा एकदम कूल काम एंड कंपोज्ड मैनर में होके हमें जो भी पढ़ा हुआ है वो बोल देना है, और जो नहीं आ रहा है वहाँ पे सॉरी बोल देना। और एक और चीज़ है, एक बार अगर हमने किसी क्वेश्चन पे सॉरी बोल दिया तो बस वो वहीं ख़त्म, उसका इम्प्रिंट हमें अगले क्वेश्चन पे नहीं आना चाहिए। यानी अगर एक गलत हो गया तो उसके बाद सीरीज़ में अब अगला क्या होगा, अब अगला क्या होगा, ऐसी लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दूसरा कोई टॉपिक आएगा उसमें हम बोलेंगे, तो वो नर्वसनेस ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए, Yes, sir. है ना। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.